निशा नैन्सी को जवाब दो, why have you become host? Yes sir. जवाब दो पहले से, तभी हम आगे चले। क्या सर? कुछ नहीं। खाली बैठे कुछ तो कर दी। Okay. Now we are starting with our due diligence part. Right. Whenever we talk about the due diligence part, normally we start with our CIP, wherein we assess the risk of the customer basic information. After that, conduct AML risk assessment, determine customer risk rating high, medium, low. And then, in case we get to know if it is a high risk customer, then we do the EDD. High risk customer escalate to AML compliance officer whenever we have to do EDD for any customer. Yes, without the approval from the compliance team, we cannot proceed. Right? Determine the relevant risk information is needed on the customer, nature of business, purpose of account, expected pattern of activity, volume, nature of transaction, amount, origination and destination of funds, basic business documentation, customer and for the uh, uh, normally for the businesses, right? And whenever a business account is being opened, normally it falls under this EDD, high risk, uh, high risk customer, on the enhanced due diligence needs to be done. Guys, is that clear? Yes. Yes, sir. So normally they are talking about for the now they are referring to the beneficial owner. Who is the beneficial owner? Normally the natural person who ultimately owns or controls customer, or the person on whose behalf a transaction is being conducted. So it also incorporates those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. Example that we gave, what sort of right person has. Which official owner first place? Should we not simply look at the legal owner? Yeah, normally legal owner we always do all this, but if a person has rights, ठीक है? Prerak, answer to your question, you can find it in the slide. Yes, sir.
यश बेटा यहाँ रख दो ऊपर ही। Okay. So recently changes in the CDD requirement. A person at 25% and plus one share constitutes sufficient evidence of ownership of control. Right? EU European Union Fourth Anti-Money Laundering Directive defines beneficial owner as any natural person. That they've just given example. Normally, the second part is a percent of 25% plus one share contributes sufficient evidence of ownership or control in the organization. For other legal entities, the beneficial owner would be the natural person who controls 25% or more of the property or entire entity, who is the beneficiary of 25%. Again, person who has certain rights to take decision. And the other one directive mandates the following CTT measures: identifying, verifying the customer identity based on the data. Normally the one which we have discussed. So now they have also just talked about all these parameters needs to be checked for beneficial owner as But well. the In short, maximum limit is also 25%, or it could be more than 25%. it can be anything. Anything about 25% considered to be the owner, But sir, and who has the power. regulatory would put a limit, no, for a particular company that it should not be more than this equity percentage or equity holding of particular person. Guys, 2 मिनट रुकना यार, 2 मिनट हाँ में जी। सबका कॉल आ रहा है। प्रेरक क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किसी पर्सन के पास मोर देन 25%? कि अगर कोई कंपनी है, देखो रिलायंस की कंपनी है, if I hold 25% of equity of Reliance company, है कि फिर मतलब it's like if I hold 25% and the other person as well who's holding 25%, but there would be a limit from regulatory SEBI side, no, कि इतने से ज्यादा एक पर्सन होल्ड नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर कंपनी की इक्विटी। अच्छा, हाँ, तो मेरे को वो जानना है कि वो लिमिट कितनी है। फिर वो नहीं तो तो फिर गूगल जितने भी एजीएम या कोई भी वोटिंग राइट्स वगैरह वो तो फिर वो उस बंदे के लिए पार्शियली वो हो जाएंगे। देख, मतलब मैंने जितना है आज तक ऑब्जर्व है, मतलब एज अ बेनिफिशियल ओनर का ये है कि अगर किसी दो हैं और दोनों बंदों के पास मोर देन 20 है ना, वो दोनों ही बेनिफिशियल, वो हम उसे डिक्लेरेशन लेते हैं। लेकिन ये जो तू लिमिट का कह रहा है, ये तो गूगल ही करना पड़ेगा कि मतलब मैक्सिमम किस बंदे के पास कितनी लिमिट होती है ना। क्योंकि फिर अगर सपोज अगर है ना? जैसे 51% अगर कंपनी के ओनर के पास है और 40% कोई और किसी और बंदे के पास है, फिर तो मतलब वो रेशो भी काफी ज्यादा है। हाँ, हाँ, फिर ये तो एक बार गूगल ही करना पड़ेगा कि लिमिट स्पेसिफिक। मैंने लिमिट चेक किया बट अभी शो ही नहीं हो रहा कुछ भी। कोई नहीं, पढ़ के देख लेंगे, कहीं प्रेरक तो मिलेगा। ऐसी कोई रेगुलेटरी लिमिट नहीं होती है। वैसे होने तो नहीं बट चाहिए, क्योंकि भाई कंपनी का अपना अपना हाँ है ना कि किसी के पास हाँ, कितने भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है आप कितने लिमिट। भी शेयर्स खरीद सकते हो, ऐसा कंपनीज एक्ट में कोई लिमिट मेरे हिसाब से तो कोई मेंशन नहीं, और ना ही सेबी एक्ट में ऐसी कोई लिमिट मेंशन है। बट यार कंपनी ओनरशिप में देयर शुड बी अ लिमिट, बिकॉज नहीं तो कुछ भी अगर हम एजीएम या कोई भी बात करें देन उस बंदे का द पर्सन हु होल्ड्स अ मोर इक्विटी ही वुड हैव मतलब वो एक पर्टिकुलर कंपनी का सुपीरियर हो अरे जाएगा। सुन, जो बेनिफिशियल ओनर है, अगर कंपनी ही लिस्टेड है ना, तो हम उसको तो लिस्टेड के उसमें ही मानेंगे हम। फिर तो जैसे हम ले रहे हैं रिलायंस के शेयर, तो हम बेनिफिशियल ओनर कंसिडर ही नहीं हो रहे हैं ना वहाँ पे। जैसे कि विप्रो कंपनी है, उसका जैसे कि प्रेम जी ओनर है, अजीम प्रेम जी, हाँ, उसकी होल्डिंग मेरे ख्याल से 25 to 30% है, बाकी सब पब्लिक होल्डिंग है। तो और जिसमें से प्रमोटर्स का भी कुछ होल्डिंग है उनमें। तो मेरे को जानना है करके कि जैसे कि लिमिट क्या होती है फॉर एनी एनी इंडिविजुअल, जैसे कि अगर हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, ये एक प्रेरक क्वेश्चन ऐसी परसेंटेज, कोई सर्च लिमिट करते हैं, नहीं अगर है। कुछ होता है ऐसा तो देखना पड़ेगा कि क्योंकि यार किसी पर्सन की तो लिमिट स्पेसिफिक। होएगी, नहीं तो फिर कंपनी उसके नाम पे हो जाएगी उस बंदे की इक्विटी अगर वो ओन कर रहा है तो। अगर नहीं, जितनी ज्यादा वो पता है क्या, एक इन्वेस्ट करेगा उस कंपनी में, जैसे प्रेम जी की कंपनी है, अगर सपोज कोई ज्यादा पर्सन उसको ज्यादा पैसा पड़ा है, वो इतना इन्वेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली सारी कंपनी उसके नाम पे हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी इक्विटी होल्ड कर रहा है उस कंपनी की।
यार तो ऐसे हाँ सही बात है कि ऐसे ऐसे तो होना नहीं चाहिए। रेगुलेटरी कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। एजीएम तो कंपनी अपने खुद से करते हैं ना, नहीं, तो एजीएम में मतलब कंपनी खुद ही ऐसा कुछ भी मैं बना हाँ, सकते हैं बट मैं रूल्स एंड वही बोल रहा रेगुलेशन। हूँ कि सपोज आपकी कंपनी है, तो आपकी आप कंपनी जैसे आपकी कंपनी। नहीं, मैं वैसे मेरा हम्म। एग्जांपल लूँ तो आपने जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, मैं आपकी कंपनी में ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, मैंने आपकी कंपनी का 75% ले लिया, आपके पास 25% हाँ अगर बचा, मैंने 75% ले लिया, तो आई विल बी दी, मतलब दी पर्सन नो। यार कंपनी करने ही नहीं देगी। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, हाँ मेरे पास 30 है, तो वो चाहे अपनी वाइफ को दे, मेरे हिसाब से वो करने ही नहीं देगी। बट फिर यार इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो तो ओनर बन जाएगा ना। मैं तभी मेरे को पूछ रहा हूँ कि हाँ लिमिट तो होती है कि नहीं, और कितनी लिमिट होती है। देखो, क्या कहते हैं, आप अभी ना एप्पल का एक सिनेरियो पढ़ना। एप्पल इसी तरीके से आईटी कंपनीज को सबको इस तरीके से अपने साथ मतलब अपने अंडरटेक करती जा रही है। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, एप्पल सारा शेयर होल्डिंग उनकी खरीद लेती है। तो ऐसे सारी बहुत सारी आईटी कंपनीज उसने इस तरीके से अपने होस्टिंग कर ली है, खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया है। हाँ तो वही तो हॉस्टाइल टेक ऐसी कोई ओवर हो लिमिट, गया। ऐसी कोई लिमिट नहीं है। कंपनीज को ये मार्केट में अपनी चीजें को ना कंसिडरेशन में लेना पड़ता है कि उनके शेयर होल्डिंग किसके पास है, किधर चेंज हो रहे हैं उनके। ये सारे काम कंपनी के जो जो भी ये डिपार्टमेंट में होते हैं उनको देखना पड़ता है कि कोई इनका कंपनी का टेक ओवर नहीं कर ले। तो ये सारे वैसे कोई भी रेगुलेशन, आई थिंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है कंपनीज एक्ट में। तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है नहीं कि इतनी परसेंट होल्डिंग ही कोई इंडिविजुअल ले सकता है। आपके पास पैसा है, आप कितना भी कुछ भी शेयर खरीद लो, आप कंपनी के ओनर बन जाओ, आपके पास इतना पैसा है। हम्म। बट फिर ऐसे तो पहली बात, कोई भी और कंपनी पहली बात कंपनी फुल शेयर्स को कभी भी उसमें लाती ही नहीं है। अलॉटमेंट को अलॉट ही नहीं करेगी। हाँ अलॉट ही नहीं हाँ, करेगी। क्योंकि तेरा उनको भी क्वेश्चन पता होता आउट है ऑफ द कि बॉक्स था। यार मेरे को ना एकदम से बहुत नहीं डाउट हो मतलब रहा था। मुझे मुझे ये लग रहा था कि इस बेनिफिशियल ओनरशिप से रिलेटेड है, बट तेरा क्वेश्चन कुछ और ही है, अब समझ आया। हाँ, मतलब मेरे को ये- इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना था कि हाँ हाँ मतलब नहीं अगर भाई किसी के पास भाई, बहुत सारा पैसा है, वो तो या तो फिर दूसरी कंपनी की इक्विटी खरीद के बैठ जाएगी और कहेगी कैसे मैं ओनर बन गया हाँ जैसे आप एक बार तो अभी उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक ही आदमी या फिर आप शॉर्टिंग कोई एक पर्सन ही सारी इक्विटीज खरीदते जा रहा है। तो कंपनी और जो भी कहते हैं उनके ब्रोकर्स और जो भी उनके वो डायरेक्टली होते हैं, वो डील लोग ये करेंगे तो ना। हाँ, वो डीलर जो भी होंगे वो उनको भी तो तो समझ में हमारा आता है कि बेसिकली ऐसा क्यों आप हो रहा है। बोल रहे हो करके, इट्स द कंपनी व्हिच डिसाइड, नॉट द सेबी। हाँ कोई, हाँ सेबी के तरफ से कोई भी ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है कि नहीं है, इतने परसेंट आप, हाँ इट यहाँ तक वेरीज मुझे फ्रॉम इतना कंपनी पता टू है कि नहीं कंपनी, है। सो अकॉर्डिंग टू हाँ यू। हाँ, आपकी जो भी पॉलिसीज आपकी हैं आप उनके हिसाब से काम कर सकते हैं कि आप कितना शेयर देना चाहते हाँ हैं, कितनी पब्लिक होल्डिंग देना चाहते हैं, कितने प्राइवेट रखना चाहते हैं, कितना प्राइवेट प्लेसमेंट में। आपको पता है 30% भी अगर इन्फोसिस का उसके पास है तो 20% भी स्टेक जो होगा ना उसके प्रमोटर्स के पास होगा, डायरेक्टर्स के पास होगा। वही तो ऐसे मैं कह लोगों रही के हूँ। पास होगा कि जो टोटल ना कंपनी का 50% शेयर जो होगा वो ऐसे लोगों के पास होगा कि वो जो बहुत कंसिडरेशन में होंगे, वाइस डायरेक्टर हाँ या वही तो मैं फैमिली। कह रही हूँ कि उसकी वाइफ या उसके जो भी हाँ, आसपास के बंदे होंगे। ये पॉलिसी जैसे ऐसी कंपनी अगर चलानी है तो कंपनी के लिए हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है कि उनको अपने आप को कैसे बचाना है। आप ये एप्पल वाला भी मैंने रिसेंट कहीं रीड किया था, वो आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से मेरे समझ को में आ एक जाएगा बार आपको। वो आप लिंक शेयर करना, एप्पल वाला। अरे आपने यार बीवी नंबर 1 देखी है क्या मूवी? नहीं नहीं। उसमें होता है ना, सलमान खान के पास 49% शेयर होते हैं, उसकी वाइफ के पास 51% शेयर होते हैं। तो अल्टीमेटली टोटल जो अच्छी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसकी वाइफ के पास होती है। उसके पास 49 होके भी कोई फायदा नहीं होता ना। मैं देख टेक लूंगा। ओवर नहीं कर सकता ना वो उसकी कंपनी। बात सही है। है ना सुहावना? हाँ अच्छा, मेरे को पहले सुहावना नैन्सी एक और बात बताओ कि जो हाँ इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट होता है डेरिवेटिव्स में पे करने के लिए, जब हम डेरिवेटिव में एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, हम्म। तो हम्म वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉशनल वैल्यू कैलकुलेट होता है। हाँ हाँ, हाँ, बट वो कैसे, मतलब हम क्या चीज को कंसिडरेशन में लेते हैं और क्या चीज को कंसिडरेशन में नहीं लेते? यार वो ये पढ़ना पड़ेगा, देख थोड़ा भूल गई लेवल हूँ वन पर में। मैं देख के बताती हूँ उसको। मतलब मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 2000 जैसे रिलायंस का शेयर है 2000 रुपीज का, ठीक है, हाँ और हमें मतलब अगर हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो हमें लॉट में ले सकते हैं,
तो अगर एक लॉट 250 शेयर्स का है तो इट्स लाइक 2000 इंटू 250 5 लाख हो गया ये। हाँ बट हमें हमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए वी डोंट हैव टू पे 5 लाख, वी हैव टू पे द इनिशियल मार्जिन जो नो वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। हाँ, तो उसमें मतलब अभी नॉशनल वैल्यू का जैसे कि फॉर्मूला होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू करंट स्पॉट प्राइस, तो कौन कौन सी हाँ अमाउंट को कंसिडरेशन में लेंगे? को मार्जिन का एक वो भेज रही हूँ, आप उसमें से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। मेरे इसमें देखो ऐसा लिखा है 30% जो होता है वो देना पड़ता है। हाँ, मैंने भी 30% ही सुना है, बट मेरे को वही जानना है कि जो 30% है वो एक अजम्पशन है कि वो एक मतलब रेगुलेटरी प्रोवाइडेड फिक्स्ड है है। कि हाँ मतलब एक वो देखो फिक्स्ड है। क्या ये इसमें लिखा हुआ है, द ब्रोकर लिक्विडेट द सिक्योरिटीज इन केस द क्लाइंट डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट। 30% फिक्स्ड है पक्का? हाँ 30% लिखा, मैं आपको इसका पिक्चर भेज दे रही हूँ, आप एक बार इसको रीड कर लो। मैं आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं शाम तक हाँ, उसको क्लियर करके भेजूंगा। ठीक है। इनिशियल मार्जिन कैसे, इसमें इनिशियल मार्जिन ना मिनिमम अमाउंट होता है, कैलकुलेटेड होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। कैलकुलेट होता है टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज हाँ नथिंग बट द टोटल, नॉशनल वैल्यू। हाँ इट्स नोशनल वैल्यू नॉशनल and वैल्यू। it's the minimum amount calculated as a percentage of the transaction value to be हाँ, placed by the client with the broker before the actual purchase. वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि हम लोग जब कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सो दैट इज द अमाउंट 5 लाख व्हिच यू डोंट पे, वी ओनली पे द इनिशियल मार्जिन टू गेट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये ये पता है, आपने बोला इनिशियल है, मार्जिन कोई भी, हाँ आपने बोला कि हम वी नो दैट द इनिशियल मार्जिन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉशनल अमाउंट, एंड यू सेड समथिंग या अबाउट नॉट 30% कि 30% में थर्टी फिक्स होता परसेंट है। से पता है अलग अलग टाइप के मार्जिन होते हैं। इनिशियल मार्जिन है एक, मेंटेनेंस मार्जिन होता है। ठीक है, मेंटेनेंस मार्जिन अभी हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेंगे कि नहीं लेंगे, सिर्फ अगर हमें इनिशियल मार्जिन ले, कैलकुलेट करना है? मेंटेनेंस मार्जिन तो वो होता है ना जो हमारे एंड ऑफ द डे ये हम सेट हाँ करते हैं। ये देखो डिफरेंस ये है इनिशियल मार्जिन में कि वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का परसेंटेज होता है, और जो मेंटेनेंस मार्जिन होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज का परसेंटेज होता है। ठीक है। जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना लास्ट डे ट्रेडिंग का, उस दिन जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू होती है उसका जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा मेंटेनेंस मार्जिन। और जो मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम मार्जिन प्लेस करने होते हैं अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ बिफोर दे आउट टू ट्रेड, हाँ वो चीज कह रहे हो ना मेंटेनेंस मार्जिन? हाँ हाँ, इट्स मेंटेन बाय द क्लाइंट, ठीक है। द और ब्रोकर। इसमें कुछ कॉस्ट ऑफ कैरी का कॉन्सेप्ट हम कंसिडरेशन में लेते हैं कि नहीं? कॉस्ट ऑफ कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं लेते? नहीं बट यहाँ पे लिखा हुआ है करके कि कंपनी। मतलब डेरिवेटिव्स में एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट उसका कैलकुलेट करने के लिए। आप फॉर्मूला पढ़ो, मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट मैं फिर भी शाम तक ना कुछ देख के बताती हूँ फिर आपको अगर ऐसा है। नहीं, मेरे को बस वही जानना था, थैंक यू। ठीक है, मुझे एक बार तब भी आप पूरा कंफर्म कर देना इतना इनिशियल मार्जिन नॉशनल अमाउंट। मैं आपको पिक्चर भेज देती हूँ। ठीक
Nancy, just take it up this PEP with the group quickly. Okay. Focus area: politically exposed persons that are known as PEP, an individual who is or has been interested with a prominent public function. PEP बेसिकली क्या होते हैं, जो भी किसी भी पब्लिक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट का है, वो बहुत ही, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एसबीआई बैंक का, तो वो पेप होगा. या कोई कांग्रेस का नेता है तो वो पेप है. तो उनसे हमें ज्यादातर कोई ना कोई रिस्क रिलेटेड ही होता है कि कोई वो फाइनेंशियल क्राइम कर सकते हैं या उनकी पहुंच इतनी अच्छी होती है. तो हम उनका उनका जो रिस्क होता है वो हाई रिस्क ही कंसिडर करते हैं उनसे. द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद पेप जस्टिफाई द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल एएमएल और सीएफटी प्रिवेंटिव मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रिलेशनशिप विद पेप्स. जब भी कोई पेप कंसिडर होता है तो हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, हम सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे लेते हैं. जब भी कोई हमारा पेप कंसिडर होता है तो जो भी हमारा मार्केट होता है, जिस हम उसके अप्रूवल के बिना हम कभी भी अकाउंट जो है रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं करते. कि हम उनसे अप्रूवल लेते हैं कि हमारा कोई भी इस पर्सन से हमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा या कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी. टू एड्रेस दिस रिस्क, FATF Financial Action Task Force recommendation 12 and 22 require countries to ensure that designated non-financial business and professions implement measures to prevent the misuse of the financial system and non-financial business and the profession by PEP and to detect such potential abuse if and when it occurs. तो ये वही बोल रहा है, जो फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स है वो रिकमेंड करता है कि जो भी ये पेप्स होते हैं, चाहे कैसे ही हो, कंपनी में हो या कुछ भी हो, तो उनका रिस्क के लिए हम सारे अप्रूवल्स लें कि कोई वो हमारे सिस्टम को मिसयूज ना कर सके,
कोई हमें फाइनेंशियल लॉस ना हो या कोई नॉन फाइनेंशियल पे हमारे पे इम्पैक्ट ना पड़े। A politically exposed person does not always mean an individual who directly holds public office. It also includes their immediate family member, close business associate, as well as many senior executive of state-owned enterprises. For example, जो पेप होता है, यही नहीं कि अगर मैं कांग्रेस का नेता हूं तो मैं अकेला पेप है। अगर मेरी वाइफ अकाउंट खुलवा रही है तो वो उस पेप की क्लोज एसोसिएट हुई, जिसे कहते हैं हम रिलेटिव क्लोज एसोसिएट्स। तो हम उसको भी कंसिडर पेप में ही करते हैं कि हमें उससे भी उतना ही रिस्क है जितना हमें मेन पेप बंदे से है। तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का मतलब डायरेक्टली केवल वही वाला इंडिविजुअल नहीं होता, उसके कोई भी फैमिली मेंबर है या क्लोज मेंबर्स है या कोई भी उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव है कंपनी में, हम उन सबको हाई रिस्क ही कंसिडर करते हैं। दैट इज पेप। समझ आया बच्चों? बहुत अच्छे से। यस मैम। तो पेप बेसिकली हाई रिस्क वाले बंदे होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। मैं तुम्हें ना कल दिखाऊंगी, या मैं ना लॉगिन नहीं कर सकती, जैसे कैसे देखते हैं कि कोई बंदा पेप कैसे है या नहीं है। ठीक है, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी या कुछ, आज संडे है तो उसमें दिखा सकते हैं मैं तुम्हें। आर दी फॉलोइंग इंडिविजुअली पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। ओह ये कौन है, केजरीवाल नंबर 1? प्रियंका चोपड़ा तो पेप नहीं। तो कौन कौन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड हेड ऑफ स्टेट्स हो, मिनिस्टर्स हो, असिस्टेंट मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हो, हाई लेवल जुडिशियल बॉडीज होते हैं, और कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, डीएसपी या जो भी होते हैं, एम्बेसडर्स हो, चार्ज अफेयर्स हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट रन एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसबीआई बैंक का मेन डायरेक्टर होगा, एमडी है जो चेयरमैन है वो पेप होगा। कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, बोर्ड ऑफ सेंट्रल बैंक्स, ये आरबीआई के बंदे हैं जो। इंटरनेशनल सपोर्ट कमेटी मेंबर्स, बीसीसीआई के बंदे हैं जो। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, सिबलिंग, स्पाउस, पार्टनर इन लॉज, अंकल एंड आंट्स। ये मतलब वो जो है लास्ट लाइन थी कि पेप जो होता है केवल इंडिविजुअल बंदा नहीं होता, उसके रिलेटिव क्लोज एसोसिएट्स और सीनियर मैनेजमेंट भी हो सकते हैं। तो ये पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वो है। क्लोज बिजनेस रिलेशन, जॉइंट बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ लीगल एंटिटीज और लीगल अरेंजमेंट विद पेप, sole beneficial ownership of legal entity which is known to have been set up for the benefit of PAC। मतलब कोई भी ये होती है ना कि पेप वो पेप के लिए ही कोई नहीं ओपन हुई हो उसका ओनरशिप पाने के लिए, तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है या नहीं है। हमेशा उसके लिए हमें सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना ही नैन लेना से है। एक बार बताइए यार कि मतलब हाई रिस्क कैसे रहते हैं पे? यार तू है भाई, कोई भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ भी हमारे पास फाइनेंशियल लॉस कर दे हमारे मतलब कंपनी के लिए, वो ही है ना, हाई रिस्क ही है ये बंदा। कितनी चलती होगी इस बंदे की? अच्छा हमारे तेरी कोई मान लेगा कुछ भी? उसकी कितनी चलो, बड़ी ये मतलब ट्रांजेक्शन मनी हो रही लॉन्ड्रिंग होंगी बैंक वगैरह, में, मनी उसमें हाँ लॉन्ड्रिंग वगैरह मनी करवा सकते लॉन्ड्रिंग हैं करी ये। होंगी, उसकी कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी। मेन सोर्स तो वो अगर हमसे हाइड करे, बट होंगी तो कुछ घपलेबाजी। अच्छा नैन्सी, अगर इनके घर में जो भी सर्वेंट्स वगैरह काम करते हैं, नहीं पॉलिटिशियंस हैं, सर्वेंट्स वगैरह के नहीं, बट जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन हो वो सब क्लोज एसोसिएट, सर्वेंट तक का नहीं होगा। रिलेटिव्स भी हैं, अंकल आंटी हाँ भी। हाँ उसके नाम जमीन करवा दी। हाँ। अरे कौन सा है हमारे यहाँ नेता, आई थिंक प्रशांत है नहीं आज। प्रशांत की होटल है के साथ। प्रशांत की मासी या कोई वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कुछ है ना, ऐसा कुछ सुना है मैंने। नैन्सी, विधायक ना हाँ विधायक। इसमें विधायक इसमें पार्टी से हाँ। कंटिन्यू एमएलए। करते हैं। क्या बोल रहे प्रेरक? हाँ, मैं कह रहा था इसमें एक्टर्स वगैरह तो इंक्लूड नहीं होते। रीजन प्रियंका चोपड़ा है, वो उसकी फोटो थी जस्ट प्रियंका बिकॉज नहीं नहीं, प्रियंका यूनेस्को की, चोपड़ा नहीं है। वो यूनिसेफ की पार्ट है, इस करके शी इज अ पार्ट ऑफ यूनिसेफ। हाँ अगर वो किसी चीज की मेन पार्ट है तो वो पेप होगी। हाँ, जैसे कि शी इज अ एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ। हाँ तो वो होगी पेप। अब ये नहीं कि ओनली नॉर्मल एक्टर है तो वो पेप नहीं है।
अगर वो किसी ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या जैसे मिनिस्टर्स लिखा है, कुछ भी स्टेट रन एंटरप्राइजेस की कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो वो पेप होगी। खाली तेरे मेरे एक्टरों को कोई नहीं पूछता भाई। पैसा भी प्रिंट आउट। कहाँ पे आ गए? फोकस एरिया पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पेप अटेम्प्टिंग टू शील्ड हिज और her identity behavior of the pep। क्या है ये? फोकस एरिया कस्टमर पैप, जो पेप होता है वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्या कहते हैं शील्ड करता है। बिहेवियर, पेप का बिहेवियर कैसा है? पेप पोजीशन और द इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस, उस मतलब पेप की बिजनेस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इंडस्ट्री विद विच पेप इज इन्वॉल्व। हमें ये देखना होता है कि पेप जो है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसके कितने कितने बिजनेस चल रहे हैं, उसका बिजनेस रिलेशनशिप कैसा है, वो किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज यूज कर रहा है, जैसे नेट बैंकिंग या कुछ भी चीज, वो किस कंट्री और स्पेसिफिक में ओरिजिनली डील कर रहा है। अगर वो मान लो हाई रिस्क कंट्रीज में डील कर रहा है, जैसे चाइना और ये ईरान, साइरिया टाइप्स कंट्री अफगानिस्तान। हैं, सैंक्शन कंट्रीज जो हमने कल पढ़ी थी, रिस्क है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिखाती हूँ तुम्हें, बैक कैसे होएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये ना मेरे ऑफिस का है कि किसी अकाउंट में ये सिग्नेटरी है, और तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये बंदा पेप है, तो मुझे उससे ये अकाउंट ही मेनली टोटल हाई रिस्क कंसिडर कर दिया जाएगा कि हमें एक बंदा है तो इसके हिसाब से भी ये पेप है। नेक्स्ट क्या है? फोकस एरिया डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, एनी बिजनेस और प्रोफेशन दैट पोजेस अ मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क बट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल सर इसमें शायद हाई रिस्क शेल कंपनीज, ये थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। एनी बिजनेस और प्रोफेशन दैट पोजेस अ मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क बट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शायद वो अरे जो बार कसिनोज टाइप बार होते हैं, हाँ। कसिनोज और वो बार्स होते हैं, वो फाइनेंशियल जिसमें इंस्टीट्यूशंस हॉर्स, नहीं होते, बट वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करते हैं क्योंकि जुए से और ये सब होता है जो। इसमें जुडिशियल बॉडीज भी दिया हुआ है, जुडिशियल बॉडीज भी आएंगी। वो पेप में तो कंसीडर होती है, बट उसका यही तो मैं पूछ रही हूँ सर से कि एनी बिजनेस और प्रोफेशन क्योंकि जुडिशियल बॉडीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं तो होती, नहीं है। पर प्रोफेशन है हाँ, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, पैसा हाँ जी। जुडिशियल बॉडीज भी आएंगे। सॉरी गाइस, सर इस मेरा वाले का ऑल ऑफ प्लान। सडन बीच में मेरे वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आ गया था, सो ओ ये सर साले आपकी वीकेंड को बड़ी छोड़ बड़ी दो बंदों से बात है। यार, यही करता है, दुखी कर देते सर हैं यार। हमारी जॉब लगवा दो। नहीं नहीं, आप ही के लिए भी मैंने बात करी है। वो पता नहीं बीच में जिसने इंटरव्यूअर था ना, ही इज डाउन विद कोविड, सो ही स्टिल ओके, रिकवरिंग। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बैड लक, सही हो जाए बंदा जल्दी से। आई विश सब ठीक हो जाए। अच्छा गाइस, पेप में इज इट ऑल क्लियर? यस, नो? यस यस सर। यस सर। गुड जॉब नैंसी। सर ये वाला बस है कि चलो, हाँ हो गया था हमारा क्लियर। बोलो बोलो, हो गया था ये? ओके, हाँ ये वाला था कि कसिनोज और ये सब था ना इसमें, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते बट हमें स्टिल उनसे मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। बट इनका ये उस पे आते हैं शिपिंग हमारे, और हाई हाई रिस्क में आते हैं। हाई रिस्क में कसिनोज और ये जो कैश इंटेंसिव बिजनेस होता है, ये गोल्ड कस्टमर्स वाले, गोल्ड वाले ना बंदे ये भी होते हैं, ज्वेलर्स वगैरह भी, these also come। ओके। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। दिस इज समथिंग लाइक वो स्ट्रो बैंकिंग है ना, ऐसा यस। कुछ होता
Provision of banking related services by one bank correspond to an overseas bank respondent to respondent with cross-border products and services that it cannot provide them with some, typically due to the lack of international network. मुझे हिंदी में पता है सर थोड़ा बहुत इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा यहाँ HDFC है और यूएस में भी HDFC है, बट जो HDFC है यूएस वाला वो मान लो येन में डील नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो दूसरा वहाँ का कोई अकाउंट होगा, बैंक है फॉर एग्जाम्पल SBI है, तो वो उससे हेल्प लेता है, उनसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कि आपका और जो इंडिया का HDFC है उसमें आप अपना एक अकाउंट ओपन कर लो, और जो भी हमारे पास उस पे क्या कहते हैं चेंज के लिए पैसा आता है या कोई भी ट्रांजेक्शन आती है, तो आप उस चीज का पूरी EDD करके सब कुछ करके तो आप हमें वो पैसा कन्वर्ट करके दे सकते हैं। ऐसा कुछ होता है, मतलब हेल्प करते हैं दूसरे बैंक को, जो भी क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज होते हैं उनके लिए। Absolutely right. Good. मतलब सुना है मैंने। This is right. This is exactly it is. Guys, समझ आ गया? Yes, sir. But guys, I just heard yes from 2 people. Yes, What sir. about others? Yes, sir. Good. This is the beauty of level 3 and plus an experienced person who is working in the same domain. आपके efforts कम हो जाते हैं. Good job, Nancy. And good job, Prerak. I heard from Manika yaar, that you explained her very well. Shabash. Thank you, sir. Thank you. Manika, अगर कोई भी डाउट हो ना पहले प्रेरक को ठीक है I think I owe it to you, sir. Thank you. नहीं, thank you so much, guys. Thanks for just this teamwork. Okay, so normally they are asking in correspondent banking what can go wrong. बहुत सारी चीजें can go wrong. Number 1, responsibility and oversight. Number 1, risk-based due diligence. Yeah, if you will, any other bank will support you in your yes, मेरे सामने in your international activities, right? In that case, they will also need to perform it's also a financial institution. They would also need to do the same set of due diligence which you as a current bank is doing. If they do not do, then there must be that they are not following the rules, right? Okay, so what sort of risk? Geographical risk. I am a Pakistani customer and have an account with the Pakistani bank, and I am going to do some trading or let's say do some investment in US. But Pakistan bank does not have any branch in US. What they will do is they will connect with a bank in the US to provide facilities, right? In that case, other bank, what sort of risk the other bank will think of and what can go wrong there? One is your geographical risk. Second, branch, subsidiaries and affiliates, ownership and the management structure business. So all these are become some of the risk areas for the other bank, Vostro Bank as well. ठीक है guys? Yeah, normal simple की बात है that other country will say, other Bank of America will say, अच्छा यार पाकिस्तान का कस्टमर पहली बात तो हाँ कर रहे हैं नहीं करना. Second, it will say, अच्छा ठीक है reputed customer है, international history अच्छी है, चलो ठीक है, we can just think of it. Approval लेने के बाद, now what risk? Geographical risk सबसे पहला पड़ेगा. Branches, subsidiaries, कि उस बैंक की कोई branch है या नहीं है. Branch है तो फिर हमारे पास क्यों आ रहा है, branch नहीं है तो what sort of contract these guys needs to do.
ownership and management structure, right? जो भी customer है बैंक का, what is the ownership and the management structure, and accordingly they take the required decision. Because at the end of the day, if anything will go wrong, it will hit the reputation of that particular bank. Plus the chances of financial losses, not meeting the regulatory requirement, blah blah blah. So there can be n number of reasons which we read earlier. ठीक है? क्या मैं म्यूट पे बोल रहा हूँ? नहीं आ रही आवाज से। Customer based product and service which needs to be offered, regulatory status and AML control. सर हम एक्सेल भी करेंगे ना? हाँ जी, आई थिंक इनके Excel में लिए ना मजा कुछ आएगा। बोलो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए जैसे जो एएमएल चेक्स होता है तो उसका शायद वॉल्स वर्क का कुछ आता है, एएमएल सैंक्शन स्क्रीनिंग का, उसी के बेसिस पे सारे एएमएल चेक्स होते हैं जो एक अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट कंट्री के बैंकिंग अलग कहते अलग हैं इनके रेगुलेटरी लगे चेक्स हैं। होते हैं। मतलब मेनली मैंने जितना भी देखा है वॉल्स वर्क का होता है, तो भी मैंने डील नहीं करा बट देखा है मैंने सामने आरएमए और ये सब जो होता है। यस यस यस। सर ये निशा सर हमारा फाइनल असेसमेंट मई तक होगा या जून तक होगा? नहीं यार, कोशिश आज का डेट है आज 16। 16। सर उसमें ना फाइनल में फर्स्ट लेवल भी अच्छे से पढ़ना है अभी हमें, सॉफ्ट्स भी अच्छे से मारना है। फर्स्ट वीक ऑफ जून योर फाइनल असेसमेंट विल बी डन। ओके। अगर उससे पहले अगर हमने वीकडे में एक दो क्लासेस ले ली तो हो सकता है 30 जून को हो जाएगा, 30 मई को हो जाएगा। तो वो भी ऑनलाइन ही होगा फिर तो? हाँ यार, ऑब्वियसली लॉकडाउन। ओके सर। But on during that day, it will be on video. ओके सर। सर If it उसमें will be ना online. फर्स्ट लेवल में कुछ जैसे स्वैप्स करवा देना, वो मुझे। आज जब रिवाइज रिकैप सेशन करेंगे, डिस्कस एवरीथिंग। ओके ठीक है ना? ओके। EDD आप सारी चीजें पढ़ चुके हो। EDD में फटाफट क्विकली गो थ्रू EDD। And whenever we talk about enhanced due diligence for पढ़ना, एक सेकंड पढ़ना, मैं जरा बेटे को पकड़ो एक मिनट, एक सेकंड, just go through it. enhanced due diligence for higher risk customer is especially critical in understanding their anticipated transactions and implementing a suspicious activity monitoring system. पढ़ लो बच्चों। No, a lot of things. Nancy, you मेरी बात सुनाई दी थी? हाँ आ रही है। I think you know a lot of things. Good. Keep it up. वो चीजें हैं यार। Nancy, kudos to you. हेलो नैन्सी से तुम आज मॉक भी ले सकते हो नहीं, केवाईसी Nancy के सही तो। में kudos to you. मेरे को कुछ Thank प्रॉब्लम you. आएगी मैं तुझे पकड़ूंगा ये सब में, KYC हाँ पकड़ लियो यार। पता है चीजें, पता है बहुत हैं अभी, स्टिल मैंने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि वो होता है ना जो हम काम कर रहे हैं अभी साथ साथ, उसके साथ हमें पढ़ने की भी जरूरत पड़ती है, बट वो टाइम ही नहीं मिलता। बट जैसे ये जो यार सर उस दिन पेपर्स में AML एक्ट और ये सब एक्ट है ना, मतलब यूएस पेट्रियोट एक्ट, मैंने इतनी बार अपनी बुक खोली है कि पढूं उसको, आज तक पढ़ नहीं पाती। परसों मेरी मतलब मैनेजर ने मेरे को कुछ, क्या जैसे सर उस दिन बता रहे थे कि नोटिफिकेशंस वो भी पढ़ना है अभी। हाँ जी पढ़ लिया? यस सर। कोई सवाल आया है? आई थिंक दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस। बस अब स्लाइड बाय स्लाइड आ रहा है, सर बट वी हैव डिस्कस। ये जो ये अपना है करके EDD, हाँ हाँ इट्स ड्यू टू बिकॉज जो CDD होता है उसमें हम रिस्क डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो नहीं 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 नहीं, CDD में रिस्क डिटेक्ट कर पाते हैं,
बट ठीक है ना। the high बट level of सस्पिशियस जहां पर थोड़ा सा में HNIs लगता है, थोड़ा सा कुछ अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स होते हैं कि एनी कस्टमर होल्डिंग एन अमाउंट लेट्स से मोर देन 50 lakhs उसका आईडीडी करना, ठीक है मतलब जस्ट थ्रेशोल्ड के हिसाब से, प्लस HNI है, पॉलिटिकल एक्सपोज पीपल है, प्लस फ्यू कैटेगरीज, उनका आईडीडी करना ही करना है। ठीक है, यस नो मे बी। सर एसडीडी भी क्या होता है, मतलब इसी का पार्ट है क्या? क्या? एसडीडी एस डीडी स्पेशल ड्यू डिलिजेंस। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस, अरे और सिंपलीफाइड क्या, ड्यू वो अलग अलग डिलिजेंस वर्ड बना रहे। मतलब वो पढ़ने के लोड तो नहीं है सर, इट्स लाइक गुड टू नो ना, ये सब मस्ट टू नो। मैं फोटो भेज दूंगी। हाँ यार, गुड मैं टू नो है। फोटो भेज दूंगी अगर पढ़ना हो तो। नहीं सर, अगर गुड टू नो है तो फिर ठीक है सर। नहीं यार, पता क्या है, अभी जितना जब आप इंटरव्यू के लिए जितना प्रिपेयर करो उतना कम होता है। सर बट हाँ जी सर, वैसे वो तो है। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू यार, रम की कमी हो रही है आज इस मौसम में। आई हैव माय रम। इससे पहले मेरा बेटा बॉटल तोड़ दे, आज मैं रम खत्म कर दूंगा। एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन रम, प्लीज जॉइन मी। सर काश दिल्ली में होता तो हाँ बोल देता, लेकिन हाँ यार, नो, स्टार्ट विद रम। ओके guys, any question from the group here? नो सर। सबको समझ आ रहा है? लेवल 1 लेवल 2 बहुत अच्छी तरह पढ़ा यानी कि अब आपने। अब ड्यू डिलिजेंस देखो, banks should have adequate controls and procedures in place so that they know customers with that they're dealing with. Adequate due diligence on new and existing customers should be key part of these controls, right? कि जो भी पुराना कस्टमर है उसके कितने टाइम बाद करना है, न्यू कस्टमर में हमने क्या क्या चीजें वैलिडेट करनी है इन केस अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आई है तो। Inadequate due diligence can stake a bank to operational loss, reputational loss, concentration loss, and the legal risk. Right? This can result in significant financial loss. Operational loss, obviously, financially आ गया, operational आ गया, reputational risk आएगा कि यार जैसे SBI ने तो बेसिक चेक्स भी नहीं करे, माल्या को इतना बड़ा लोन दे दिया। लीगल प्रोसीडिंग्स, बैंक्स का सू एंड लॉज एंड सूट्स का हो रहा है, अगेन रेपुटेशनल रिस्क। सो एट द एंड जब किसी बैंक पर इस चीज के नाम लगने स्टार्ट होते हैं चार्जेस, बैंक स्टार्ट्स लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन, एंड रिजल्ट लॉस, फाइनेंशियल लॉस प्लस पेनल्टी। Financial institutions should be required to undertake customer due diligence measures when they are establishing a business relation, carrying out occasional transactions beyond a designated threshold. If there is a suspicion of money laundering or terrorism financing, the financial institution has doubt about the veracity or adequacy of previously obtained customer data. कुछ भी हो कस्टमर को, राइट? जब भी कुछ ऐसी चीजें हो, बैंक शुड ऑलवेज टेक डू द ड्यू डिलिजेंस कि यार नॉर्मल आप अकाउंट में एक साथ 10 करोड़ निकाल रहे हो, अपना आईडी प्रूफ दे दो, पर्पस बताओ, राइट? नॉर्मल आपने हमेशा डिपॉजिट कराया, आज ऑल ऑफ सडन विड्रॉ क्यों कर रहे हो, कहाँ यूज करना है, आप ये बताइए, हम अपना चैनल के थ्रू पे कर देंगे। कहेंगे बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, बेसिक आपको रीजन एप्लीकेशन देनी होगी, इतना बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और यू आर टेकिंग इट एज। ठीक है? और एनी एक्टिविटी जो आपको लगता है जहाँ पर थ्रेशोल्ड से ज्यादा आपके विड्रॉ हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, देन अगेन यू आस्क अंडरटेक and check from the customers. ठीक है? ओके सर। यस सर।
आ जाओ यार, सिंप्लीफाइड तुम्हारा आ ही गया। Simplified and enhanced due diligence. Customer due diligence shall be conducted according to risk-based approach. अभी risk-based approach क्या होती है हम सबने पीछे पढ़ लिया, right? The meaning of risk-based approach is customer due diligence should be adapted to the anti-money laundering and counter financing and terrorism (AML CFT) risk level. Therefore, the customer should be what all when the AML CFT risk of the customer is low, it is called simplified. Retail customer के लिए simplified word use होता है on an average, right? मीडियम के लिए स्टैंडर्ड और हाई नेटवर्क के लिए और हाई रिस्क के कस्टमर्स के लिए एनहांस। सो नॉर्मल जब हम बात करते हैं ना CDD और SDD, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है। हाँ जी सर। सो नॉर्मली CDD एंड SDD एक ही कंसिडर करते हैं, बट यस SDD बोले तो यार वेरी सिंपल, बट स्टिल CDD अलग, SDD अलग से यूज नहीं होता, CDD ज्यादा यूज होता है, CDD एंड EDD। ठीक है सर। ठीक है। The purpose of risk-based approach is to adapt the setup of the bank in order to identify, assess, monitor, manage and mitigate money laundering and terrorist financing risk. Relationship manager who is in charge of the business relationship should complete the KYC policy requirement. Why? Before the entry into relationship, during business जब आप when you open your account, time to time KYC and protect the relationship with the customer in case if you have any doubt. Customer risk rating, who provides the customer risk rating or basis what customer risk rating is identified? Normal whenever we talk about customer risk rating, आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी जाती है। नैन्सी कौन से सिस्टम का नाम बताया आपने जिसमें उनका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है? यूएस के लिए, ऑफर हमारे लिए जैसे डो जोन्स है, वर्ल्ड चेक हो गया, डो जोन्स हो गया, राइट? सो यू कैन चेक, right? So then are you identified the customer, you identified the risk, आपने risk rating check करी, and according to the risk rating you will ask for the additional documents. जैसे एक नॉर्मल बंदा आया, आपने यार मेरे को अपना अकाउंट ओपन करना है, हाँ जी, तो आप क्या करोगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, 3-4 चीजें लोगे, यू विल ओपन द अकाउंट। अभी नाउ अनदर थिंग आई विल से, यार आई एम अ सैलरीड पर्सन, मेरे पास जितना पैसा आएगा सारा का सारा सैलरी के थ्रू आएगा। सो आप कहोगे अच्छा मेरे को कंपनी का भी एक लेटर हेड दो, कंपनी का आईडी कार्ड की कॉपी दो, इफ यू वांट टू ओपन योर सैलरी अकाउंट, राइट? Then according to the risk identified and the risk rating, the due diligence is performed. ठीक है guys? Yes, no. Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Study आप लोग पढ़ के मेरे को बताएंगे। There is that I will tell you like about the case studies. Level of risk low, medium, high, सबको पता है? तीन टाइप के रिस्क होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। Yes, no. Low risk, medium, high risk mostly belongs to the HNI, financial institutions, or some suspicious activity when you just account में no any business, right? So what that becomes your medium based on the threshold. Threshold का मतलब होता है कि एक अमाउंट बैंक एक लिमिट डिसाइड कर, बीच में है तो मीडियम रिस्क है, अगर उसके ऊपर है तो हाई रिस्क है, उससे नीचे है तो लो रिस्क है। Then accordingly bank asks for the certain details.
low, medium, high risk. पेप भी हाई रिस्क में होएगा ना? सॉरी, हाँ जी, पेप कंजर होते हैं. क्या चीज सर? Normally these guys are mostly the reason why specifically banking world has called out this word as PEP, political exposed people, because most of the fraudulent activities have been taken from the PEP accounts. Okay. That's the reason it's a separate word they have added, PEP. PEP. Right. Right. Low risk individuals other than high net worth entities whose identified source of wealth can be easily be identified transaction in whose accounts अगर easily transaction है we can identify it as low. ठीक है, अपना customers likely that pose a higher than average risk to the bank may be categorized as medium risk or high risk. Customer background, nature, location, activity and source, these सारी चीज check होते हैं दोबारा से. High risk, the branches may apply enhanced EDD measures based on the risk assessment, thereby requiring intensive due diligence for high risk customers, especially those for the sources of the funds are not clear. Right? When we use the word form sleeping partners, कि आज तक इतने एक्टिव नहीं थे, अब अचानक इतने एक्टिव होने स्टार्ट हो गए, that also raise an alarm. The role of technology systems. Wachovia, I was working for Wachovia. It was because of lack of the system, Wachovia बिक गया था. And Wells Fargo took over the Wachovia. I worked for Wachovia for good, मतलब for all the functions, good 7-8 years. Why 7-8 years? 9 years. I worked for this Wachovia bank. Wachovia was found to lack adequate system and controls to monitor transaction conducted by its international correspondent bank customer for potential money laundering for other suspicious activity. Standard Chartered. Technology as the enabler role. यार जितना आपका technology strong है, for each and everything you don't have to worry, you don't have to do all the efforts manually. Solve the system that helps you to trigger an alarm. Challenges for the technology, people they do not know, they do not have training. Digitization is not normal. Those system है फिर भी सारी चीजें manual put कर रहे हैं. Bad data, we are not handling the data well. अगर data ही नहीं हमारे पास सही होगा तो system आपको report करेगा. What are the pain points? Customer reluctance, beneficial ownership, risk assessment कम है, regulation strong, implemented है but they are not followed. Bad data. These all becomes the pain for the customer. Common pitfalls, lack of integration, training and manual override. Recent trends, money laundering, interstate funeral accounts, trade-based money laundering, money brokers and TBML, trade-based money laundering, nominees and misuse of legal entities, correspondent banking, prepaid cards, virtual currencies, loan originator fraud. For some of the just trends these guys have discussed. So we are done KYC. We talked about what is money laundering, what is anti-money laundering, what are the three stages, what is risk-based approach, how and why it is important, what are the key elements. Then we also talked about the KYC, what is KYC, what is CIP, why CIP is important, what is CDD, what is EDD, we discussed specifically about the CDD, EDD, why it is important.
components, need of an hour, right? Why it is implemented, political exposed people, why banks pay more attention towards high risk customers, how and when do they identify whether a customer is high, medium, or low risk customer, right? Yes, sir. Yes, sir. So So Yes, all sir. of you, requirement from you guys is that you guys are from our next session onwards. It is not because there will be less recap. One recap session होगा level 1 to 3 का. Otherwise, आप लोग का सारा from session you will come and read it. Will have any question? So next two topics क्या हैं? I'll show you the next two topics. Next will be controlling the money laundering. उसके बाद we'll read the FATCA. ये तो I guess सारा एक दिन में हो जाना चाहिए. जी सर. हाँ, ये तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. मतलब most of the study you guys will have to do this on your own, this money laundering piece. सर क्योंकि there is nothing that प्लेसमेंट का क्या सीन है सर? इसका प्लेसमेंट का आप लोगों के पास किसके पास कॉल नहीं आई अभी तक? आपने किसी से मेरे बात पास करी नहीं है? आई. सर मेरे पास गीतिका मैम का मेल आया था वो 110,000 के लिए, बस उसके बाद तो Why are you waiting for emails? Call them. सर कॉल करते हैं तो उठाते नहीं है. दो Call. तीन दिन पहले कॉल करी हुई है फिर भी नहीं पिकअप करते कॉल. चलो let me speak to them. Let me speak. That why this batch 36 is not getting opportunities from placement team. सर अब घर से प्रेशर है, अब घर वाले यस सर. आएगा यार, आएगा. जो मार्च में खत्म हो जाना चाहिए था, मैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में खत्म करेंगे, तो 2 महीने तो वैसे डिले है. अभी तो मैं कहता था पढ़ रहा, आ जाओ, रिकैप मत करवाओ, ज्यादा टाइम बचाओ. मानते ही नहीं थे तुम लोग, डिलीट हो सारे. यार मजाक. So in our next 2 sessions FATCA control. we'll cover this one. Controlling money laundering is something that you will read. It is self-study. There is nothing I'm telling you well in advance. I will not touch this. FATCA overview I'll cover. UK regulatory requirement I'll cover. Case studies we will discuss. Okay. So case studies अभी से पढ़ना start कर दो because you guys will be presenting me the case studies. तो जो आज ने पढ़ने को दी है it's the same. ये अलग टॉपिक है. मैम अभी तो मैंने सिर्फ KYC ML किया. लास्ट में आया था ना. हाँ वो case तो study. उसी की पार्ट स्लाइड्स का पार्ट है ना, बट अलग से रिस्क अच्छा, मैनेजमेंट केस स्टडीज हैं. दिस इज रिस्क मैनेजमेंट केस स्टडीज, वो एमएल के बाद. ठीक है. ठीक है ना. सो आप चलिए गाइस, बाय बाय देन, टेक केयर. सुन, I'll call you थोड़ी देर में. Just a minute, I'll call you थोड़ी देर में. Okay, bye bye. bye sir, happy weekend. You बाय सर.